Very, very good evening, very exciting evening. Once again, I'm here with you. One very, very important topic that the Schrodinger equation and the question based on this often asked in the IIT advanced examinations. Often, most of the students are very much confused how to deal with the questions which are associated with the Schrodinger wave equation, question related to the wave functions. Normally, in the examination, a very complicated, very complex equation is given to the students for an orbital for an electrons of the hydrogen or the hydrogen-like species in terms of a wave equations. That wave equation in generally has a radial part, angular part. Most often, it has been trend over the past so many years. The question being asked in the IIT advanced examinations, only they have focused on the radial segment or the radial part of the wave equations. Angular part of the wave equation is essentially deals with the shape of the orbitals, why S is spherical, why P is dumbbell, why D have the two dumbbells, why F orbital are the triple dumbbells. These are some kind of the questions which are often asked. After an extensive study of the Schrodinger equations, I have come to the conclusion that at this juncture of time for the students, those who are going to appear for the IIT advanced examination, I am bringing for them a very easy and the shortcut tricks by which they can solve the question in the jiffy of time without wasting any time. So exactly how the shortcut trick operates, how you have to look upon at the wave equations, and whatever has been asked to you regarding that equation, how you have come to the conclusion. One question will be given followed by the four options. You can easily check out the equation, look at the options, and in no time, within a time frame of the 30 seconds or maximum of the 60 seconds, you will be able to find the answer of the questions. Let me get back to the board and try to understand how the shortcut tricks is implemented. What are the very basic facts that you need to remember while dealing such type of the questions. In order to deal that, let me explain to you first how the trick will operate and what are the basic fundamental point that you have to keep at the back of your minds. Let me just catch your attention to the board. Shortcut tricks. Generally, what exactly happens in the examinations, you are given a wave function equation. With the help of the wave function equation, we can find out the orbital for which that wave equation has been given to you. From that very equation, you can also find the nodes. Nodes are of two types. There's the radial node and angular nodes. Radial node is equal to n minus l minus 1. Angular node is equal to, that is your l. Just basic level पे बता रहा, I am not going into the detail of the equations. And if you know the nodes, we can plot the graphs. Graphs can be for psi versus r. Graph can be psi mod square just versus r, and graph can also be 4 pi r square dr psi square just versus r. These are the three kinds of plots which are based on these mathematical equations. In order to understand this, I have given you one sample problems here. मैंने यहाँ कोई ऑर्बिटल मेंशन नहीं किया है जानबूझकर कि ये किस ऑर्बिटल के लिए इक्वेशन है. एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स इक्वेशन दिया हुआ है. एक एडवाइजेबल है आपके लिए कि आपको ये इक्वेशन याद नहीं करनी पड़ती है. जब कभी भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन होता है तो आपको इक्वेशन दी जाती है,
आपने वो इक्वेशन को ऑब्जर्व करना है, उस इक्वेशन के डिफरेंट कंपोनेंट्स को देखते हुए जो चीज़ पूछी जा रही है उस कंक्लूजन तक पहुंचना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक इक्वेशन दे रखी, मुझे अभी नहीं पता है कि इक्वेशन किस ऑर्बिटल के लिए है, यानी हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए एक इक्वेशन आपके पास में जो फ्रेम की गई है, psi is equal to root 2 upon 81 root pi a naught raised to the power 3 by 2 multiplied by 6 minus r upon a naught again multiplied by r upon a naught into the exponential term e raised to the power minus r upon 3 a naught cos theta। इस सारी इक्वेशंस में सबसे पहले तो आपको एक काम करना पड़ता है कि इसमें जो थीटा फंक्शन है, कॉस थीटा, साइन फाई, इस तरीके के जब कभी कोई जो है कि यानी फंक्शन या टर्म्स दिए हुए होते हैं, उस टर्म्स को आप यानी सेग्रीगेट कर लो। ये टर्म्स के थ्रू हम एंगुलर वेव फंक्शन पे जो कि जाते हैं। बाकी जो इधर वाला पार्ट है इक्वेशन का, यानी थीटा फंक्शन से पहले वाला, ये पार्ट एग्जैक्टली होता है रेडियल पार्ट। दिस इज योर द रेडियल कंपोनेंट और द रेडियल पार्ट ऑफ द ऑर्बिटल्स। और ये जो कॉस थीटा वाला सेगमेंट होता है, ये पार्ट इसका एंगुलर पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, एंगुलर पार्ट। ठीक है, मुझे क्योंकि ऑर्बिटल, जैसे मुझे यहाँ ऑर्बिटल पहचानना है कि इक्वेशन किस ऑर्बिटल के लिए दिया गया है, तो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई यहाँ करेंगे, दैट इज एन। एन का मतलब हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। भाई जो भी ऑर्बिटल होगा वो ऑर्बिटल किस फॉर्मेट पे जाएगा, एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। इसके बाद ये L होता है, L स्टैंड फॉरवर्ड, L स्टैंड हियर फॉर द एजिमुथल क्वांटम नंबर। और एक तीसरी चीज़ हम जो है कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो कि डील करते हैं। अगर आपको N का वैल्यू मालूम चल गया, L का वैल्यू मालूम चल गया, M का वैल्यू मालूम चल गया, तो डेफिनेटली आप ऑर्बिटल इजीली फाइंड आउट जो कि ले सकते हैं। और अगर ऑर्बिटल मालूम चल गया, उसके रेडियल नोड, एंगुलर नोड, ये सारी चीज़ें ग्राफिकल जो है कि ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आप वो डिस्टेंस भी फाइंड आउट ले सकते हैं फ्रॉम द न्यूक्लियस जहाँ पर कि नोड एग्जिस्ट करेंगे। तो लेट मी कम बैक अगेन हियर, एन कैसे पहचाना जाए। बेसिक जो है कि चीज़ है कि हाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई एन फ्रॉम दिस इक्वेशन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो सिंपल है, मैंने लिखा है एन कैसे पहचानना है। एन इज द कोफिशिएंट ऑफ ए नॉट इन द एक्सपोनेंशियल टर्म्स। इसमें आपने एक्सपोनेंशियल टर्म्स को देख लिया। एक्सपोनेंशियल टर्म कौन सी है, ई रेज टू द पावर माइनस आर अपॉन 3a0। इस ए नॉट का अगर मैं कोफिशिएंट यहाँ देखूँ तो मुझे साफ मालूम चल गया कि इसका जो कोफिशिएंट है, इसका कोफिशिएंट क्या आ रहा है, 3। वो जो कोफिशिएंट एक्सपोनेंशियल टर्म्स में आर यानी ए नॉट का जो भी कोफिशिएंट होता है 3a0, यानी ये 3, ये तो मिल चुका है आपको एन का वैल्यू। एन इज इक्वल टू क्या मालूम चल गया, 3। इसके बाद हमें प्रोसीड करना होता है एजिमुथल क्वांटम नंबर एल निकालने के लिए। तो एल मैंने लिखा है, ये क्या होता है, दिस इज द मिनिमम डिग्री ऑफ आर इन द पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ रहेगा, उस पॉलिनोमियल में आपको आर की मिनिमम डिग्री, मिनिमम पावर आइडेंटिफाई करनी पड़ती है। और आपकी मैं थोड़ा सा जानकारी के लिए बता दूं, इसको पहचानने का सिंपल सा मेथड होता है, साई के बाद ये जो टर्म, इतनी वाली टर्म आपको दिखाई दे रही है, ये वाली टर्म्स, इसमें सारे कांस्टेंट क्वांटिटीज हैं। √2 एक कांस्टेंट टर्म्स है, 81 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, ए नॉट होती है बोर रेडियस, ए नॉट होती है फर्स्ट बोर रेडियस, ये भी एक कांस्टेंट यानी वैल्यू है। रेज टू द पावर 3/2, ये भी कांस्टेंट। एज ए होल दिस एंटायर टर्म इज अ कांस्टेंट। इस कांस्टेंट एंड एक्सपोनेंशियल टर्म के बीच में यानी पॉलिनोमियल जो कि आता है, यहाँ पर आप देख रहे हो कि इसके जस्ट पहले आर अपॉन ए नॉट है, साथ में इस टर्म्स के साथ में जो कि मल्टीप्लाइड है। अगर आप आर अपॉन ए नॉट को इस टर्म्स के साथ में मल्टीप्लाई जो कि कर दें,
तो ये टर्म आपके पास में जो बनेगी वो टर्म आ जाएगी आपकी, यानी 6r ओवर हियर ए नॉट माइनस ये हो गया आर स्क्वायर अपॉन ए नॉट स्क्वायर, ठीक है नहीं। ये टर्म से अब मैंने मल्टीप्लाई लेके दिखा दिया। अब आप देख लो कि इस पोनेमा मतलब इस वाले इक्वेशन में आर की जो मिनिमम पावर जा रही है, आर की मिनिमम पावर क्या जा रही है 1। अगर आर की मिनिमम पावर 1 है तो वही हमारे पास एल की वैल्यू आ गया, एल इज इक्वल टू हो गया 1। एन मालूम चल गया, एल भी मेरे को मालूम जो कि हो चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है एम को पहचानना। अब देखो पहले यहीं पे इस चीज को मैं अंडरस्टैंड लेता तो यहाँ से मुझे ऑर्बिटल का अंदाजा आ चुका है। एन की वैल्यू अगर 3 होती है तो यहाँ पे ऑर्बिटल हो गया दैट इज 3। और एल आप जानते हैं एल की क्या क्या वैल्यू होती है, 0 1 2 3। 0 होता है एस ऑर्बिटल के, 1 होता है पी के लिए, 2 होता है डी के लिए, 3 होता है एफ ऑर्बिटल के लिए। इज इट क्लियर? क्योंकि यहाँ एल का वैल्यू 1 आ रहा है तो इसका मतलब ये ऑर्बिटल कौन सा हो गया, पी। अब क्वेश्चन उठता है पी में भी 3 होते हैं, पी एक्स पी वाई पी जेड। तो ये एग्जैक्टली ये वाला वेव इक्वेशन किसको रिप्रेजेंटेशन जो कि ले रहा है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको एडिशनल टर्म्स क्या चाहिए, एम यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आप अच्छे से जानते होंगे कि ये ऑर्बिटल ओरिएंटेशन को रिप्रेजेंटेशन जो कि लेता है। इसके लिए आपको ये टर्म याद रखनी है। टर्म क्या लिखी मैंने, साइन थीटा कॉस थीटा इंटू एक्सपोनेंट आयोटा इंटू योर फाई इज इक्वल टू साइन थीटा टू द पावर एम कॉस थीटा टू द पावर एल माइनस 1 इंटू ई टू द पावर आयोटा एम फाई। यानी यहाँ पर ध्यान से देखें, आपको m निकालना है तो m यहाँ पर भी है, किंतु हम यहाँ देख रहे हैं कि इस इक्वेशन में साइन थीटा टर्म्स नहीं है। आप एंगुलर पार्ट में देख लो क्या दे रखा, कॉस थीटा। कॉस थीटा से कंपैरिजन कर लो। कॉस थीटा में जो पावर है वो आ रही है हमारे पास में l माइनस एम। l मुझे मालूम चल चुका है, मुझे m ही तो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से अगर मुझे m की वैल्यू जो है कि मतलब l माइनस ये जो टर्म देख रहे हैं l माइनस दैट इज योर m, l माइनस m, अगर मुझे यहाँ से ये डाटा मालूम चल गया cos थीटा यानी यहाँ पे पावर क्या है 1, यहाँ पे क्या l माइनस, इनकी पावर कंपैरिजन करो तो ये l माइनस m इज इक्वल टू क्या आ गया 1। दिस इज 1 cos थीटा यानी cos पावर 1 थीटा cos पावर l माइनस m थीटा। यहाँ से m निकालना है तो l का वैल्यू को आप यहाँ पे सब्सटीट्यूशन कर देते हैं। l का वैल्यू क्या है 1 माइनस m इज इक्वल टू क्या आ गया 1। यहाँ से m को निकाल लें तो m इज इक्वल टू 1 माइनस 1 0 माइनस है यानी माइनस जीरो का मतलब क्या हो गया 0। अगर m की वैल्यू 0 आती है, L 1 है और m की वैल्यू 0 है, तो ये आप अच्छे से जानते हैं कि ये pz के लिए जो रिप्रेजेंटेशन करता है। यहाँ से मेरा पहला पार्ट का ये आंसर आ चुका है कि ऑर्बिटल कौन सा हो गया। इस क्वेश्चन के लिए ऑर्बिटल मेरे पास में हो गया 3pz। अगेन फिर से मैं एक बार जो है कि यानी फास्ट ट्रैक पे बता देता हूँ। अब एक्सपोनेंशियल टर्म में ए नॉट का जो भी कोफिशिएंट है दैट विल बी हियर द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। पॉलिनोमियल में आर की जो मिनिमम डिग्री होगी दैट विल बी हियर द एजिमुथल क्वांटम नंबर, दैट इज हियर 1। और अगर आपको मैग्नेटिक क्वांटम कंपोनेंट फाइंड आउट करना तो सीधा आप जो कि थीटा फंक्शन को देख लो, कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा में यानी पावर आप जो कि डाल सकते हैं 1। इस पावर को इसके पावर से कंपैरिजन ले लिया, m का वैल्यू मालूम चल चुका है। मुझे मालूम चल गया कि ऑर्बिटल कौन सा हो गया 3pz। ओके, अगर ये 3pz है, अब आपको जो है कि इसमें जो है कि निकालने हैं नोड। तो सीधी सी बात है कि रेडियल नोड अगर आपको n l सारी वैल्यू मालूम चल चुके हैं तो नोड तो निकाल ही सकते हैं। n अगर 3 है, 3 माइनस 1 एंड माइनस 1 इज इक्वल टू यानी 3 माइनस 1 तो 3 माइनस 2 इज इक्वल टू आ क्या गया 3 माइनस l
n माइनस एल माइनस वन ये रिप्रेजेंटेशन करता है टू द रेडियल नोड। इसका वैल्यू मेरे पास में 3 आ चुका है। यहाँ पर देखिए आप जो है कि L का वैल्यू ये है, ये आ गया ये, तो 3 माइनस वन इज इक्वल टू यानी कितना आ गया 1। तो रेडियल नोड का वैल्यू आ गया यहाँ पे 1। और ये रेडियल नोड कहाँ होगा 3p एंड 2p के इन बिटवीन में जो क्या आएगा। एंगुलर नोड निकालना तो एंगुलर नोड इज इक्वल टू दैट इज हेयर L, और L का वैल्यू है क्या हमारे पास में, L का वैल्यू हो गया दैट इज 1। इसमें एक इसमें क्या आ गया रेडियल नोड आ गया, एक इसके अंदर आ गया मेरे पास में एंगुलर नोड। एंगुलर नोड को ही यानी नोडल प्लेन भी बोला जाता है। पीजेड अगर ऑर्बिटल है तो पीजेड ऑर्बिटल इस तरीके से ये जेड एक्सिस के लॉन्ग, और जेड एक्सिस के लॉन्ग ये जो प्लेन होगा एक्स वाई प्लेन, यही क्या बन जाएगा नोडल प्लेन्स। एक्स वाई प्लेन विल बी हियर द नोडल प्लेन्स। ठीक है। इसके बाद अगर आपको ये ग्राफ जो है कि प्लॉट करने होते हैं तो ग्राफ को आराम से प्लॉट किया जा सकता है साई का आर के साथ में जो कि ग्राफ। अब ये थोड़ा सा यानी ग्राफिकल स्टडी अगर आपको है, क्योंकि अभी मैं जो कि ग्राफिकल का डिटेल नहीं बता रहा हूँ, मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि इस वाले केस में यानी 3p ऑर्बिटल है, आप सिंपल से इतने से ही ये चीज़ें जो कि देख लो। यहाँ पर ये है साई वर्सेस आर का ग्राफ। अगला ग्राफ बता रहा हूँ साई मॉड स्क्वायर जो है कि आर का ग्राफ, और यहाँ पे रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो यहाँ लिखा हुआ है वर्सेस योर आर। तो सीधा देख लीजिए आप कि क्योंकि आप आर के रिस्पेक्ट में ग्राफ को प्लॉट कर रहे हैं तो इसका मतलब आप देखोगे रेडियल नोड का क्या वैल्यू है। रेडियल नोड आया यहाँ पे 1, और अगर रेडियल नोड यहाँ 1 आ रहा है तो इसमें ग्राफ कैसे तरीके से जाएगा। हमेशा जो है कि P और D ऑर्बिटल के ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये ग्राफ ऐसे जाएगा, एक जगह मारेगा कट, और इस तरीके से ये ओके, यानी जहाँ पर ये इस एक्स एक्सिस को जो है कि यानी कट कर रहा है, यही पॉइंट जो कि कहलाता है जो कि रेडियल नोड। अगर साई स्क्वायर लेना तो जो ग्राफ का सेगमेंट नेगेटिव में गया इसका एग्जैक्ट जो कि रेप्लिका या इसका जो कि मिरर इमेज आप, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये इस तरीके से ये आएगा, ये गया ऐसे यहाँ पे ये, और इस तरीके से ये जो पार्ट आ गया ये पार्ट यहाँ पे हो गया दैट इज योर नोट। ये हो गया हमारे पास में नोट। और जब टोटल जो है कि रेडियल प्रोबेबिलिटी का ग्राफ निकाला जाता है तो एग्जैक्टली अगेन यहाँ पर इसी तरीके से ये ऐसे गया, फिर अगला पार्ट यहाँ जाके एंड जस्ट लाइक दिस यहाँ पर इसने ये इंटरसेक्ट किया, या मतलब सॉरी यहाँ पे यानी एक्स एक्सिस को टच किया, ये पॉइंट इसके लिए क्या गया नोट। यानी ग्राफ से रिलेटेड मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जो कि डिटेल में बताऊंगा। पहले आज आपको शॉर्टकट ट्रिक बता रहे हैं ये। अब निकालना है डिस्टेंस ऑफ नोड फ्रॉम द न्यूक्लियस, मतलब जो कि न्यूक्लियस से कितनी डिस्टेंस पे आपको रेडियल नोड मिल रहा है ये फाइंड आउट करना है। वेरी वेरी सिंपल। अगर ये फाइंड आउट करना है तो यानी इसके लिए सिंपल सा मेथड ये होता है, इसको निकालने का सिंपल सा जो तरीका होता है कि नोड पे ये साई है या साई स्क्वायर है, इसका वैल्यू 0 हो जाना चाहिए। ये 0 होने के लिए ध्यान से देखना, ये टर्म तो 0 होगा नहीं क्योंकि ये कांस्टेंट यानी टर्म्स है। यहाँ पर देखो ये एक्सपोनेंशियल वाले टर्म्स में आर क्या आएगा, आर की वैल्यू अगर आप जो इनफाइनाइट डालेंगे तो ये टर्म 0 हो सकती है, किंतु ध्यान जो के रखना r is equal to 0 and r is equal to infinite, these are the boundary conditions। बाउंड्री कंडीशन मतलब क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक स्टैंडिंग वेव होता है, न्यूक्लियस पे भी नोड कंसिडर नहीं किया जाता है और इनफाइनाइट डिस्टेंस पर भी नोड को कंसिडर नहीं किया जाता है। इन दो एक्सट्रीम पॉइंट के बीच में ही नोड एग्जिस्ट करते हैं, तो बाउंड्री कंडीशन की वजह से आर इनफाइनाइट तो होना नहीं चाहिए। अब बताओ ये एक्सपोनेंट सॉरी इस वाले टर्म्स में, इस पॉलिनोमियल टर्म्स में एग्जैक्टली
इसको जीरो करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको जीरो करने के लिए अगर मैं इस वैल्यू को जीरो कर दूं तो जीरो मल्टीप्लाइड बाय द होल थिंग विल बिकम जीरो। इट मीन्स टू दैट डिस्टेंस ऑफ द नोड फ्रॉम द न्यूक्लियस को निकालना है, तो सिंपल सा 6 माइनस आर अपॉन ए नॉट को आप जीरो देके डाल दो, या ये आ गया आर ओवर ए नॉट इज इक्वल टू हो गया 6, या आर इज इक्वल टू क्या हो गया 6 ए नॉट, आर इज इक्वल टू 6 ए नॉट। कहने का मतलब हो गया कि अगर आप इतनी डिस्टेंस पे जाते हैं न्यूक्लियस से 6 टाइम्स द बोर रेडियस, तो देयर you will find the radial node. I hope that this trick will help you a lot in the examination. Wish you all the best. Keep working hard, and in the subsequent lecture I will just give more different type of the questions based on the Schrodinger equation. Thank you very much.